हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लिहो तुम कथा सुधारी। मूक उचरै शास्त्र खट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। हाँ अपराधी गुनहगार, हाँ बेमुख मंदा। चोर जार जुआर, हाँ पर कर जो हंदा। निंदक दुष्ट हराम खोर, ठग देश ठगंदा। काम क्रोध मद लोभ मोह, अहंकार करंदा। विशास घाती अकृत घण मैं को न रखंदा। सिमर मरीदा ढाडिया, सतगुर बख्शंदा। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर पयो दर्शन देखे। हर सो हीरा छड़ के करे आन की आस। ते नर दोजक जाहेंगे, सत भाखै रविदास। सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत पे हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी। जिन गुरु जणिया माए, धन धन सतगुर जिन नाम आराध्या। आप तरया जिनी डिठा, तिना लै छड़ाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक धोवै पाए। सरवरे कैनात दे मालक प्रतख सतगुरु गरीब नवाज, नाम के जहाज गुरता गद्दी दे मालक। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोई। दीन दयाल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन मुबारक गोद अंदर श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित
ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਸ਼ੁਭ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਇੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਚੌ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਪਾਣਾ ਗੰਢੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ, ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣੀਆਂ। ਔਰ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ, ਹਰ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੰਢ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਲਲਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਖੱਡੀਆਂ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
40 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह विच ने। एक श्लोक है, जिहड़ा श्लोक तुसी श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के सामने लिखा है ना, हरसो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत भाख है रविदास। जिहड़े 40 शब्द ने की भगत साहबाना दी होर बाणी है, उन्होंने झूठ बोलिया होवेगा उहदे विच नहीं, ये एक प्रौढ़ता कीती है, एक मोहर लाई है कि मैं सच कह रहा कि जेड़े हरि वाहिगुरु परमात्मा दे हरि रूपी अकाल पुरख वाहिगुरु दे रतन रूपी नाम नूं छड्ड के करे आन की आस, दूजियां दी आस रखणगे, वो दोजकां दी नरकां दी अग तो नहीं बच सकणगे, वो नरकां विच पैणगे। सत भाख है रविदास। मैं कई बार समझदा है कि इन्हां पावन पंक्तियां दे नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीयां पंक्तियां मेल खांदियां। साच कहो कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पहला झूठ बोलते होणगे, जिहड़ा इस शब्द ते आण के उन्होंने कह दिता कि साच कहूँ सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। इवें श्री गुरु रविदास महाराज जी का पावन पवित्र श्लोक है कि जेड़े हरि वाहिगुरु परमात्मा दे नाम रूपी रतन नूं छड्ड के हीरे नूं छड्ड करके कौडियां दे व्यापारी बन जाणगे, आम दूसरिਆਂ ते आस रखणगे, वो जरूर ते जरूर नरकां नूं जाणगे। मैं समझदा 7 दिन हफ्ते दे हुंदे ने, असी तो साल के बाद 2 दिन ही श्री गुरु रविदास महाराज की जय जयकार करते हैं, 7 दिन भी थोड़े पै जाते हैं साडे वास्ते। सोमवार वाला बाबा होर है, मंगलवार वाला बाबा होर है, बुध वीर शुक्र शनिचर ऐतवार वाले बाबे साडे होर ने। मतलब कि 7 दिन हफ्ते दे 7 दिन भी मौने पै जाते हैं, साडे बाबियां की गिनती नहीं मुकती। आ केवल 2 दिन ही श्री गुरु रविदास महाराज की बचन मनने ने, उन्होंने जय जयकार करनी नहीं। गुरमुखो 12 महीने 365 दिन उन्होंने जय जयकार करनी है, तां साडा भला होवे। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक गल याद रखियो, जिहड़ा बच्चा लायक होवे ना, लायक माँ बाप नूं किसी कोलों कहाउणा नहीं पैंदा, रिश्तेदारां कोलों कि इहनूं अपनी जायदाद दे। जिहड़ा लायक बच्चा है, बाप अपने आप ही उहदे नां ते वसीयत कर दिंदा है, ये मेरा बच्चा लायक है। ते जिहड़ा लायक नहीं, भावें हज़ारां रिश्तेदार समझाउण तां भी उहनूं अपनी एक सरसाई जिन्नी जायदाद नहीं दिंदा। एक किते जमीन का टुकड़ा भी भावें हज़ारां लोग कह तेरा पुत है दे दे, पर वो कहता नहीं मेरी आग्या विच ही नहीं। जिहड़ा आग्या विच रहिंदा है, आग्याकारी पुत्र बनता है, वो सारी जायदाद का मालक बन जाता है। बिना किसी रिश्तेदार के सपोर्ट कीतिए ही उन्होंने जायदाद मिल जाती है। हुण आपां वेखना है कि असीं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के लायक पुत्र हाँ, असीं लायक हाँ। जिहड़े लायक बन जाते नहीं, उन्होंने फिर किसी कोलों अरदासां कराउण की लोड़ नहीं रहिंदी, उन्होंने विच विचोले पाउण की लोड़ नहीं रहिंदी। उन्हां पुत्रां नूं कहाउणा नहीं पैंदा गुरु नूं सीधा कि पातशाह मैनूं कि मेरे ते कृपा करो, मेरा आ कार जड़िया है। वो तो डायरैक्टली लायक ने, अपने पिता के आग्याकारी ने, सब कुछ लै बैठते हैं, सब कुछ गुरु के कोलों लै लेंगे। श्री गुरु रविदास महाराज जी का एक पावन शब्द श्री राग विच आरंभ होता है। पहला शब्द है तो ही मोही। देखो प्यार कैसा भगत का। पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और न कोई। बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण, बड़े बड़े छत्रपति राजे, कहते इन्हां विचों कोई भी भगत दे बराबर नहीं, भगती करन वाले दे बराबरता नहीं रख सकता, सब थल्ले ने। पावन शब्द पढ़िया करो,
तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚਮਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਖੌਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪੜੋ ਸ਼ਬਦ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ, ਦੁਐ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਏ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ, ਬਿਬ ਵਿਚਾਰ ਕਛਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਕਾਰ ਹਾਂ। ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੜੇ ਮੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬਰਤਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਕਟਕ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭੂਖਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ। कैसे प्यारे मुबारक बचन ने। जो पै हम ना पाप करंता अह अनंता, पतत पावन नाम कैसे हुंता। जे असी साडी अगवाई भरी है श्री गुरु रविदास महाराज जी ने, असी अपनी चेतवनी विच भी नहीं चितव सकते कि श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कोई पाप किया होवेगा तां बचन कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो साडे भले वास्ते सानू बेनती करने की जाच सिखा रहे हैं कि परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरू जी अगे किवें सिमर बेनती करनी है। वो साडा रस्ता सुखाला कर गए, उन्होंने साडा रस्ता साफ कर दिता, गवाही भर दी कि जो पै हम न पाप करंता अह अनंता, पतत पावन नाम कैसे होता। तेरा पत जे मैं पापी ना हुंदा, पतत ना हुंदा ते तेनू पतत पावन भी किसी ने नहीं सी कहना, तेरा नाम किवें पैना सी। श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन मुबारक बचनां दे नाल भाई गुरदास जी दे पावन बचन मेल खांदे ने। भाई गुरदास जी कहंदे, हे वाहिगुरू, जदों मैं सुनदा है कि तू भगतां दी प्रतिपालना करदा है तां मेरा हिरदा निराश हो जाता है। सारे एक बारी प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, फिर कृपा करो आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों मेरे कन्नां विच स्रोत पैंदी है कि तू भगतां दी प्रतिपालना करदा है तां मेरा हिरदा निराशता वल चला जाता है कि मैं तो भगत है ही नहीं। भगत वचन सुन होत निराश हृदय,
मेरा हिरदा निराशता वाल चला जाता। पर जो मेरे कन्ना विच स्रोत पैंदी है कि पतत पावन सुन आसा उरधार हो, जो मैं सुनदा कि तू पतता नूं पावन करदा है, मेरे अंदर फिर आसा वध जाती है। की होया वाहिगुरू, मैं भगत नहीं पर मैं पतत तां हां ना, पापी तां हां ना। तेरी बख्शिश पापियां दे उपर भी हुंदी है। तेरे दर ते धर्मी जां पापी जां कुकर्मी नहीं वेख्या जाता। जिवें सूरज दीयां किरणां गंदगी ते भी पैंदियां ने, फुੱਲ ते भी पैंदियां, पर सूरज दीयां किरणां ने कदी नहीं आख्या कि मैं गंदगी दे उपर पै के मैली हो गई हाँ। वो सूरज दीयां किरणां मैलियां नहीं हुंदियां। जिवें सूरज जदों रोशनी दिंदा है, वो किसी अमीर गरीब का घर नहीं वेखदा कि मैं अमीर घर दे विच ज़्यादा रोशनी दे देवां, गरीब नूं घट देवां। आ हवा चल रही है, हवा किते अमीरां नूं ज़्यादा लगदी है? नहीं प्यारिओ, इक्को जी गुरु वाहिगुरू परमात्मा की बख्शिश भी सारिਆਂ ते इक्को जी हुंदी है। सबना उपर नज़र प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी, किसे दे उपर ज़्यादा है, किसे दे उपर थोड़ी है। तब भाई गुरदास जी लिखते ने, भगत वशल सुन होत निराश हृदय, पतत पावन सुन आसा उरधार हो। ते जदों मैं सुनदा है, अंतरजामी सुन कंपत है अंतरगत। आपां कहने ना श्री गुरु रविदास महाराज जी अंतरजामी ने, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह अंतरजामी ने। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाण। हिरदा कंब जिहा जाता है कि पातशाह मैं अपने गुनाह अपने पाप दुनिया के कोलों छुपा सकदा है, पर जदों तेरे अगे आण के खड़ गया उत्थे पाप नहीं छुपाए जाते। एक गुरमुख प्यारे होए ने प्रोफैसर साहब सिंह जी, जिन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का टीका किया है। उस टीके का नाम पता की रखा उन्होंने? गुरबाणी पाठ दर्पण। दर्पण तो भाव सीसा। जो गुरु की अगे आण के असीं अपने आप को पेश करते हैं, गुरु साडा सीसा सानू विखाउंदा है। साडे गुनाह, साडी कीती हुई ठगी, साडियां कीतियां हुई चोरियां, साडे कीते हुए कुकर्म ऐटोमैटिकली साडे सामने आ जाते हैं। गुरु सीसा विखा दिंदा है। अंतरजामी सुन कंपत है अंतरगत। मेरी अंतर आत्मा कम जाती है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा, जो पै हम न पाप करंता अह अनंता, पतत पावन नाम कैसे होता। तब भाई गुरदास जी लिखते ने, जदों मैं सुनदा तू अंतरजामी भी है, मेरी आत्मा कंब जाती है। पर दीन के दयाल सुन पै भ्रम टारहु। जदों मैं सुनदा है कि तू दीना दे उपर दया करन वाला है, तू दीना की भी प्रतिपालना करदा है, कंगालां नूं भी तार देना है, कुकर्मियां नूं भी तार देना है। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या कीजै। वाहिगुरु मेरे वर्गा दीन कोई नहीं, तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं। भाई गुरदास जी लिखते ने, अंतरजामी सुन कंपत है अंतरगत, दीन के दयाल सुन पै भ्रम टारहु। जलधर संगम के फल सेंबल दुरम, चंदन सुगंध सन बंद मलगार हो। अपनी करनी कर नरक हूं न पावो ठौर। सतगुरु जिहो जिहा साडियां करतूतां ने, सानू तां नरकां विच भी ढोई नहीं मिलनी। भाई गुरदास जी कह रहे हैं, कोई चितव भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि भाई गुरदास जी ने किते कोई पाप कीते होणगे। असी सोच सकते हैं कि श्री गुरु रविदास महाराज जी ने कोई जिंदगी च कोई पाप कर्म किया होएगा, पर कह रहे हैं गुरु दे अगे, असी लखां पाप करते हुए भी पाप करे कर मुकर पाए। असी मुकर जाने हैं भी असी तो किया ही कोई नहीं जी, पातशाह मेरे वर्गा साफ बंदा ही कोई नहीं।
भाई गुरदास जी लिखते ने, अपनी करनी कर नरक हूं न पावो ठौर, तुमरो बिरद कर आसरो समारो। तेरी बिरद तेरे सुभाव दा करके मैनू आसरा मिल जाता है, नहीं तो साड़ियाँ करतूतां इहो जिहियां ने सानू तां नरकां विच भी ढोई ना मिले। यह पंक्ति पढ़ के ते याद करके जाओ। हर सो हीरा छाड़ कै करहै आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाखे रविदास। कह कौन रहे ने जिन्हां दा असीं अज गुरपुरब मना रहे हैं, जिन्हां दा असीं पावन प्रकाश दिहाड़ा हर साल ही मनाउंदे हैं। मेरा ख्याल है कि किसी गुरमुख नूं 4 शब्द श्री गुरु रविदास महाराज जी दे याद होणगे। मनाउने असीं हर साल ही हैं, कोई ओट-पोट तां निकलदी नहीं, कड्ढनी चाहिदी है। जे असीं उन्हां नूं अपना पिता मनते हाँ, अपना खसम मनते हाँ, तो मैनू एक गल दस्यो कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का जिहड़ा स्वरूप वेखोगे उहदे उपर उन्हां दा दाड़ा है, केस ने। ते जिस बच्चे की शक्ल सूरत अपने बाप नाल ना मिले तो लोग कई तरह दी गल्लां भी करते हैं। अपनियां शक्लां सूरतां अपने गुरु वर्गियां बनाईए, जिन्हां ने केसां की बेदबी नहीं की, परमात्मा की अमानत विच खियानत नहीं की। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वाहिगुरू परमात्मा का नाम रूपी हीरा छड्ड के दूसरिਆਂ ते आस रखते हैं। भाई गुरदास जी का एक कवित होर साझा करा तो फिर मैं अगे प्रकरण नूं लवां। भाई गुरदास जी लिखते हैं, जैसे मृग राज तन जंबक अधीन होत, हर सो हीरा छड्ड कै। इस पावन गुरबाणी की कुंजी पता की है? भाई गुरदास जी दे रचना, भाई गुरदास जी दियां वारां, उन्हां दे कवित सवैये। तां ही नहीं सानू समझ लग रही क्योंकि असीं ताले नूं चाबी तां लाई नहीं। असीं की करते हैं कि ताला तोड़न दी अपने मत दे थोड़े मार मार के ताला तोड़न की कोशिश कर रहे हैं। भाई गुरदास जी नूं नहीं पढ़ते। इस पंक्ति के अर्थां नूं भाई गुरदास जी की पावन कुंजी लावांगे तो तां अर्थ खुलणगे। हर सो हीरा छड्ड के करे आन की आस, प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। भाई गुरदास जी लिखते हैं, जैसे मृग राज तन जंबक अधीन होत। जंबक के अर्थ पता की ने? गिद्दड़ है। जिवें मृगां दा राजा कौन है? बब्बर शेर। कहते जैसे मृग राज तन जंबक अधीन होत, शेर जिहड़ा है गिद्दड़ की अधीनता कर लवे। हर सो हीरा छड्ड के शेर गिद्दड़ की अधीनता कर लवे तो कुल नूं लाज लगती है, शेर दे उहदे कुणबे नूं लाज लग जाती है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, जैसे मृग राज तन जंबक अधीन होत, खगपत सुत जाए जोहारत काग है। खगपत पता कौन है? पंछियों का जिहड़ा सिरमौर पंछी है, उन्होंने कहते हैं गरुड़ पंछी। गरुड़ पंछी जिहड़ा है, गरुड़ पंछी का पुत्र जिहड़ा है, वो कां नूं जाके नमस्कारा करदा फिरे। स्पष्ट वचन ने, हर सो हीरा छड्ड के करे आन की आस। खगपत सुत जाए जोहारत काग है। भाई गुरदास जी लिखते हैं, जैसे कामधेन सुत, कामधेन किनू कहते हैं? गऊ नूं। हर सो हीरा छड्ड के करे आन की आस। मैनू बड़ी खुशी हुई जो मैं आउंदिया पंक्ति पढ़ी, मैं ख्याल है मेरी कथा का आधार बन गया। तुहाडियां लिखियां हुई पंक्तियां मेरी 1 घंटे की कथा बन गई। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बड़ी खुशी है कि ऐसिया पावन गुरबाणी दी पंक्तियां तुसीं सामने लिखियां ने कि जिहड़ा पढ़े उन्होंने पता लगे कि श्री गुरु रविदास महाराज जी ने प्रकाश दिहाड़े ते आए हैं। अज असीं इत्थों उपदेश की लैके जाना है। अज तो बाद किसी कबर ते नहीं जाना, किसी पुछना देने वाले बाबे के अगे हथ नहीं डाउणा, किसी नजूमीए के अगे हथ नहीं डाउणा, किसी ज्योतिषी के अगे हथ नहीं डाउणा। अपने गुरु ते भरोसा रखना है। जो मेरे गुरु ने कहा है, गुरसिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे साई भल मानो, हर हर कथा निराली। अपने गुरु का कहा तो मान लो। जिनके पर्व मनाते हो
उनकी बात भी मानो। उन्हां दी गल भी तो मननी चाहिए है ना, जिन्हां दे असीं पर्व मनाउने आ। ਇਹ पर्व नहीं कि आए संगत विच बैठे लंगर प्रशादा छकिया वाह वाह कीती ते घर नूं चले गए, वीर मेरे दा सिर ढक दिओ, पता नहीं मेरे वीर नूं, है ना। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हसो हीरा छाड़ के करे आन की आस। सुनियो भाई गुरदास जी किवें पंक्तियां दे अर्थ खोलदे ने। क्यों भाई गुरदास जी दीयां वारां नूं कुंजी किया है, क्यों भाई गुरदास जी दी रचना नूं कुंजी किया जदों असीं पढ़ के राजी नहीं। भाई गुरदास जी लिखते ने जैसे काम तेन सुत सूकरी सथन पान। होवे गां दा पुत्र ते सूरी दे थड़ां नूं जाके मूंह मारे, सूरनी दे गां दा पुत्र हो के सूरनी दे थड़ां नूं जाके मूंह मारे, फिर ओदी कुल नूं लाज लग जांदी है, दाग लग जांदा है। वो कहदा गां दा पुत्र होया, काम तेन दा पुत्र होया। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਨੀ ਦੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਜੇ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਦਾ ਬਛੜਾ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਗਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੈਸੇ ਬਛੜਾ ਬਛੜ ਫਿਰ ਪਰਤ ਆਨ ਗਾਏ ਥਨ, ਦੁਗਧ ਨਾ ਪਾਨ ਕਰੇ ਮਾਰਤ ਹੈ ਲਾਤ ਕੀ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਤ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਲਾਮਾ ਮਿਲੇ ਤਾਹੀਂ। ਜਾਕਾ ਠਾकुर ਉੱਚਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पैरोकारो, महाराज कहते जाका ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर घर जात न सोही। वो दूसरे दे घर में जाता चंगा लगता है, वो कहेगा कल तो ये गुरपुरब मना रहा सी, इनू अपने अपने गुरु ते भरोसा नहीं है तो मेरे को की लैना है। वो तो फिर कपड़े लाएगा, तुहानू छांग लवेगा, वो लोगन मूड अधिक सुख पावे, वो तुहानू मुन के तुहाडी किरत कमाई लुट के ते राह पै जाएगा। दूजे चौथे पंजवें दिन अखबार च खबर आईयां होंदियां ने बाबा बलात्कारी निकले है। रहो विचार। भाई गुरदास जी लिखते ने जैसे काम तेन सुत सुकरी सथन पान, ऐरावत सुत गर्द में अगर भाग है। इंद्र दा हाथी है ऐरावत। ऐरावत हाथी दा पुत्र होवे ते गधे दे अगे भजा फिरे, खोते दे अगे भजा फिरे, तो कहेगा कि ऐरावत दा पुत्र है। इसे तरह ही जदों असी अपने गुरुआं दा दर छड्ड के होरनां दे दरां ते जाके जदों सिर झुकाउने हैं ना, ते लोग कहिंदे होणगे कि इहने अपनी कुल नूं दाग लाया है, ये अपने गुरु दा नहीं बनिया। रहो विचार। अखीरली पंक्ति सुनने वास्ते थोड़ा जा दिल नूं मजबूत करना पवेगा। भाई गुरदास जी कहते ने जैसे काम तेन सुत सुकरी सथन पान, ऐरावत सुत गर्द में अगर भाग है। तैसे गुर सिख सुत, गुर सिख सिख दा पुत्र, सुत मैंने पुत्र। तैसे गुर सिख सुत आन देव की शरण जाए। अपने गुरु का दर छड्ड के होरनां देवियां देवतियां दे पिछे भज्जा फिरे जिहड़ियां ओहदियां है नहीं, जिहड़े देवे देवते ओहदे है नहीं उन्हां अगे भज्जा फिरे। तैसे गुर सिख सुत आन देव की शरण जाए। निहफल जन्म, ओहदा जन्म निसफल चला जाता है। जैसे बंस में बजाग है, ओदी हालत ओदे वर्गी है जिवें भली कुल दे विच दोगला पुत्र पैदा हो जावे। दोगला पुत्र जिसनूं महाराज कहंदे बेसवा कह कर पूत जमत है, तिस नाम प्रयोग है त्रकटी।
ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। आओ अपना ध्यान उस स्थान ते ले जाइए जिथे सतगुरु रविदास महाराज जी जोड़े गंढ रहे हैं, शाही मार्ग के उपर कांसी की धरती ते। एक गंगा ते नहाउण जाण वालियां दा, ब्राह्मणां दा, साधुआं दा टोला आया। एक ब्राह्मण की जुत्ती टुटी हुई है, उन्हें 10-15 फुट दूर खलो के मान करया करो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी ते, मान करया करो पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी दे, जिन्हां ने श्री गुरु रविदास महाराज जी नूं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच थां दित्ती है। चौंकड़ा मार के बैठे ने श्री गुरु रविदास महाराज जी। जिथे असीं गुरु साहिबाना दी बाणी नूं मत्था टेकदे हां, उत्थे इन्हां महापुरखां गुरुआं नूं भी नमस्कार हुंदी है। 15 फुट दूर खलो के उस ब्राह्मण ने ऐ जुत्ती टुटी हुई श्री गुरु रविदास महाराज जी अगर सुटी, और रविदास मेरी जुत्ती गंढ दे। बड़े अदब दे नाल जोड़ा लिया, गंढिया तो उस ब्राह्मण नूं दिता है। ब्राह्मण ने पैरों में जोड़ा पाया, कह लगा की कीमत है, किन्ने पैसे चाहिए है। कह लगे महाराज जी तुसी ब्राह्मण लोग हो, तुसी परमात्मा की पूजा करते हो, है तो सारे पखंडी ने, पर श्री गुरु रविदास महाराज जी कह लगे मैं तुहाडे कोलों की पैसा लवां, पर मेरी एक बेनती है, तुसी गंगा नूं जा रहे हो, गंगा नूं पैसा मैं तुहाडे कोलों कोई नहीं लेना, पर मेरा एक काम करियो, आ मेरा एक कसीरा भाव एक टका भेटा जिहड़ी है गंगा को लैके जानी है। कहंदे कोई गल नहीं, दे दिओ। कहंदे जदों ब्राह्मण ने टका लिया ना ते अपने करमंडल दे विचों गंगा दा जल कढ के ते उह टके नूं धोता। शूद्र दे हत्थ दा टका है ना, वो टके नूं धोता। गुरु नानक साहिब पातशाह जी ने भी जदों गृहस्थियां दी निंदिया कीती सी, जोगियां ने बटाले दी धरती ते उन्होंने क्या सी, तुसी होए अतीत गृहस्थ तज फिर उनके घर मंगण जाई। गुरु नानक साहब जी ने क्या सी, तुसी अतीत हो के गृहस्थियां दी निंदिया करते हो जोगियो, ठूठा फड़ के फिर उन्होंने घरां ते ही मंगण जाते हो ना गृहस्थियां ते। इस ब्राह्मण ने अपने करमंडल दे विचों गंगा जल कढ़िया ते उह टके नूं सुच्चा कीता। श्री गुरु रविदास महाराज जी कहंदे देवद जी एक शर्त है, टका तुसी लै जाओ, पर गंगा मैया नूं कहना कि रविदास ने टका भेजिया ते अपना हाथ कढ़ के अपनी भेटा लवे। लै तां लिया, हुण जुत्ती भी गंढाई सी, पैसा भी कोई नहीं लिया, ते मन में हसदे भी ने कि लोग किन्ना किन्ना सोना गंगा च सुट दिंदे ने, वो तो कदी गंगा ने हथ कढ़ के लिया नहीं। ਲੱਖਾਂ रुपया लोग आ हुण जदों लंघदे हो ना, अज जदों असीं छोटे छोटे हुंदे सी ट्रेनां ते सफ़र करना, 6 करोड़ रुपये का पुल बनिया, उहदे ते भरोसा नहीं। 1 रुपया कढ़ के ब्यासा दरिया दे विच, सतलुज दरिया दे विच असीं सुट्टदे आ। रुपये ते भरोसा है, 6 करोड़ का पुल बनिया, उहदे ते नहीं सानूं भरोसा हैगा। 1 रुपया जिहड़ा सुट्टिया उहदे ते भरोसा है। और ब्राह्मण भी सोचन लगा कि कैसी मत है भगत दी, कदी गंगा ने इन्नी वरी असी गंगा ते गए हैं, लोग इन्ना इन्ना सोना दान कर देंदे ने। पर चला गया गंगा ते उन्हें इशनान किया, उहदे झोले दे विच पिया होया टका भुल गया। जदों वापस मुड़िया ना ते लाग दे नाल दे ब्राह्मणां नूं नहीं दस्सिया, याद आया ते कहण लगा कि तुसी चलो मैं एक बारी होर चुभा ला आवां। उन्हें नहीं दस्सिया कि मैनूं मखौल ना करन किते की एक गल कह रहे हैं। गंगा के किनारे ते खड़ के उस ब्राह्मण ने आवाज मारी, गंगा मैया एक चमार है, शूदर है, रविदास नाम का, काली काली उन्हें बोल कह कि मैं अपने साथियों के नाल फिर मिलना है। उन्हें एक कसीरा भेजिया है तो वह कहता कि गंगा हाथ कढ़ के लवेगी तो दे देना, नहीं तो वापस लै आना, मैनू दे देना।
ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਗੰਗਾ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਲਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵੀ, ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਹਨੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲ ਕਹਿ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ